हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ये हमारा विस्टास का 4th लेसन है, वो इनकम्प्लीट था। आज से हम ये कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर एग्जाम। मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस यूनिट आर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना। ये जो पूरी कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की कहानी है और जापान वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अमेरिका। सो ऑल अमेरिकन्स वेर द एनिमीज ऑफ जापानीज। सडनली वन डे सदाओ एंड हाना फाउंड एन अमेरिकन soldier and he was a prisoner of war. It means he had tried to leave the custody of Japanese soldiers and Japanese soldiers had shot them from his back. But anyhow he could manage to escape and suddenly Sadao and Hana found him lying at the stony seashore near their house. So they took him inside because both of them were doctors. Both of them were patriotic also. देशभक्ति भी थी उसमें और सच्चे डॉक्टर्स भी थे। क्या करे, देशभक्त बनके ये सोल्जर को जापानीज आर्मी को वापस दे दे, उसको दरिया में फेंक दे, या फिर एज अ डॉक्टर की ड्यूटी निभाए। पहले तो इस आदमी की हेल्थ, उसकी जान बचाए। एनी हाउ दे टुक द प्रिजनर ऑफ द वॉर इनसाइड देयर हाउस एंड दे केप्ट हिम in the room of Sadao's father. Sadao's father was pure Japanese man and he had decorated the room according to the Japanese tradition. Though he was no more, उसकी डेथ हो गई थी, फिर भी Sadao and Hana had kept the room very neat and clean and tidy. The servants of the house didn't like to see the enemy in the house. Now see what happens. आगे देखते हैं। यूमी, ये कैरेक्टर का नाम हमने लास्ट एपिसोड में सुना था, शायद आपको याद हो। स्टूपिड यूमी वॉज अ सर्वेंट हु लुक आफ्टर द किड्स ऑफ सदाओ एंड हाना और सदाओ के वे 2 बच्चे थे। उसके लुक आफ्टर का काम, आया का काम कौन कर रहा था? यूमी। So Hana requested Yumi to help him to clean this man. But जब यूमी ने देखा कि he was a white man and he was an enemy, she became very angry and she said that I will not clean the enemy. I will not touch the white man. He is our enemy and I will not tolerate him in this house. Stupid Yumi, she muttered fiercely, is this anything but a man and a wounded helpless man? इस आदमी को में क्या प्रॉब्लम है? ये बेचारा एक सीधा साधा आदमी है। Moreover that he is a wounded helpless man. Because she was a doctor, Hana was a doctor. So as a doctor she felt that it was her first duty to save the life of the wounded man. In the conviction of her own superiority, कन्विक्शन करना यानी प्रतीति होना। हाना को अपनी सुपीरियरिटी की प्रतीति हुई। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs kept the white man covered. She said that okay, Yumi is my servant. And she denied to clean the wounded man. उसने wounded man को क्लीन करने की एकदम जोरदार बना कर दिया उसने। तो उसने सोचा मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं तो उससे, मेरा जो
प्लेस है वो सुपीरियर है। सो शी बेंट इम्पल्सिवली, जोर से, आवेग से, गुस्से से यूमी चली गई और हाना बेंट डाउन हो गई। एंड व्हाट डिड शी डू? शी अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड। टाइड का ऑपोजिट है अनटाइड। नोटेड रग्स, रग्स के ऊपर नॉट्स लगाए थे, ये रग्स उसने ओपन अप किया। जो रग व्हाइट मैन को कवर करके रखी थी वो रग उसने ओपन कर दी। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. How did she wash the face? Carefully. So carefully is an adverb of this sentence. ये when से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। When she had his breast bare, जब उसने पूरा ऊपर से रग थी वो निकाल ली, उसको ओपन अप कर दिया। She dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. Yumi hot water लाई थी, उसके अंदर क्लीन वाइट क्लॉथ को उसने डीप किया एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली। See, she is a true doctor, and carefully she washed the face of the wounded man. The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture. How was the old man? So the old man, the man's skin, the wounded man's skin, though rough with exposure, जब उसकी स्किन एक्सपोज हुई, it looked little bit rough but was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. ब्लॉन्ड का दो मतलब होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर यानी शॉर्ट हेयर, और ब्लॉन्ड का दूसरा मतलब होता है फेयर स्किन। तो जब वो छोटा बच्चा रहा होगा तब उसकी स्किन कैसी रही होगी? फेयर रही होगी। बट अब तो वो सोल्जर बन गया है तो उसकी स्किन थोड़ी सी रफ हो गई है, हार्ड हो गई है। While she was thinking these thoughts, देखो ये while से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, मैंने आपको 11th में भी कई बार सिखाया है कि while के बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस ही आएगा। याद रहेगा आपको? और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, इन शॉर्ट एनी कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। वाइल से जो सेंटेंस बनता है वो भी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है और इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट्स, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. इस पैराग्राफ में हाना ने सोचा कि when he might be a child, his skin might be very blonde. उसकी स्किन ब्लॉन्ड होगी, फेयर होगी। लेकिन while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now, अब उसको ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज वाई? ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब वो चाइल्ड नहीं है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग, कीप ऑन इसका V2 केप्ट ऑन, उसके बाद ING फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना है। आप इन फ्यूचर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे तो ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो कीप ऑन या केप्ट ऑन, उसके बाद ING फॉर्म ही आता है। तो शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम until his upper body was quite clean. Until से भी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आता है, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग सेंटेंस है। कब तक उसने क्लीन किया? तो until his upper body was quite clean, उसकी अपर बॉडी क्वाइट क्लीन हो गई तब तक उसने क्लीन किया।
बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर। उसका वुंड तो पीठ पे था क्योंकि वो भागा था ना, जापानीज सोल्जर्स के कब्जे में से भाग गया था, सो उसको पीठ पे गोली लगी थी। तो शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर। हाना उसके टर्न ओवर करने की हिम्मत नहीं कर सकी। वेयर वो सदाओ, मैंने तो उसका पूरा अपर बॉडी क्लीन कर दिया और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको अपसाइड डाउन कर दूं, लेकिन ये सदाओ कहाँ है? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंक्शियस। वेयर वो सदाओ, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग। एब करना यानी कम हो जाना, लेस होना। उसका गुस्सा अब एबिंग कर रहा था यानी कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल। शी just started to wipe her hands on the wrong towel. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. Lest का बहुत अच्छा यूज ये सेंटेंस में किया गया है। शायद इस मैन को ठंड लग जाए, पता नहीं क्या होगा, शायद इस मैन आदमी को ठंड लग जाए। That's why she put the quilt over him. Sorry, इसने आदमी के ऊपर क्विल्ट लगा दी। Why did she put the quilt over the man? She had fear that this man might have be chilled. उसको ठंड लग जाए, रखे ने उसको ठंड लग जाए। She put the quilt. बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया है। सदाओ, she called softly. और आपको पता है ये the Japanese people are very soft spoken. वो बहुत softly बोलते हैं। सदाओ, he had been about to come when she called. When she called, he had been about to come. ये about to वो आने ही वाले थे। स्पोकन इंग्लिश में आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे तो आपका सेंटेंसेस इफेक्टिव बन जाएगा। He had been about to come when she called. His hand had been on the door and now he opened it. जब उसने बुलाया सदाओ तो उसका हाथ तो हैंडल पे था, डोर पे था, एंड नाउ ही ओपन। शी सो दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट। व्हाट डिड हाना सी व्हेन ही सो सदाओ ओपनिंग द डोर एंड कमिंग इनटू द रूम? शी सो दैट सदाओ हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट। उसने सर्जन का कोट भी पहना हुआ था। You have decided to operate, she cried. तो फिर आपने ऑपरेट करना डिसाइड कर दिया है। She said, ऐसा यूज नहीं किया है। She cried, उसने थोड़ा सा लाउडली उसने बोला। Yes, he said shortly. हाँ, it means the duty of the doctor won. डॉक्टर की ड्यूटी जीत गई। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma. So, see, he unfolded sterilized towel upon the floor of the Tokonoma. Tokonoma is a platform-like stand and on which they arrange the flowers and other showpiece items. टोकोनोमा alcove and put his instrument out upon it. और उसके ऊपर उसने क्या रख दिया? अपने जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स थे उसे रख दिया वहाँ पे। Fetch towels, जाओ जाके टॉवेल्स लेके आओ। She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. और वो लिनन शेल्व्स में से टॉवेल्स निकाल के लाई। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और साथ में क्या लाई? मैट के थोड़े टुकड़े भी लाए जैसे कि वो फाइन फ्लोर का कवर था वो बिगड़ ना जाए। She went out to the back veranda where the gardener kept stripes of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. कितने अच्छे लोग थे। विंटर में श्रब्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को ठंडी ना लगे इसके लिए उसने मैट के
स्ट्रिप्स रखे थे, तो गार्डनर वो स्ट्रिप्स लाके वरांडा में रख के चला गया था। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सो दिस वाज यूजलेस। वो मैट को बचाने के लिए वो स्ट्राइप्स लेके आई कि चलो मैं अपनी मैट्स तो बचा दूं, क्योंकि अपने ससुर जी, अपने फादर इन लॉ ने अच्छे से ये रूम सजाया था और उसका फ्लोरिंग अच्छा था, जापानीज स्टाइल का था। लेकिन व्हेन शी केम शी सो दैट इट वाज यूजलेस। व्हाई वाज इट यूजलेस? The blood had already soaked through the packing and the man's wood and had ruined the mat under him. और अपना मैट तो रुइन हो गया था, क्योंकि ब्लड है, उसके वुंड के ऊपर कॉटन लगाया था, लेकिन फिर भी उसमें से भी ब्लड आ गया और उसकी मैट तो बिगड़ गई। ओह द मैट, शी क्राइड। यस इट इज ruined, सदाओ रिप्लाइड, as though he did not care. हेल्प मी टू टर्न हिम। ये मैट तो आपकी रूइन हो गई, मुझे इसको टर्न करने में मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। आगे वाला भाग जो जब वो वाइल ही वाज स्लीपिंग, तो हाना ने उसका पूरा बॉडी आगे का क्लीन कर दिया था, लेकिन जहाँ पे वुंड था वो भाग वो क्लीन करने की हिम्मत उसकी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि मुझे, मेरी तो मैट्स तो रुइन हो गई, अब तुम मुझे उसे हेल्प करो, सॉरी, हेल्प मी टू टर्न हिम। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, she said. She continued to talk and told Sadao that Yumi ने मना कर दिया, she would not wash him. Did you wash him then? तो फिर ये आदमी को आगे से किसने क्लीन किया? आपने क्लीन किया? Sadao asked, not stopping for a moment his swift concise movement. concise movement, उसने अपनी मूवमेंट्स चालू रखी और इतने स्विफ्टली, जैसे हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन करते समय इतना स्विफ्टली अपने हाथ चलाते थे, मूवमेंट्स करते थे, इसी तरह सदाओ ने भी अपने काम चालू रखा। और उसने कहा तो फिर यूमी ने नहीं क्लीन किया तो किसने क्लीन किया? आपने क्लीन किया। यस, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्सॉर्प्शन। He did not seem to hear him. ऐसा लग रहा था कि वो उसे सुन नहीं रहा है, और she was used to, लेकिन उसकी हाना को उसकी आदत हो गई थी, इसका ऐसा बिहेवियर की उसको आदत हो गई थी। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. लेकिन उसको ये आश्चर्य, ये उसको पता नहीं था, और शी वॉज वंडरिंग दैट वो किसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये उसको पता होगा या नहीं। वॉज ही अवेयर ऑफ दिस थिंग और नॉट, बिकॉज इट वॉज द हैबिट ऑफ सदाओ टू वर्क फॉर विथ सो अटेंशन without knowing who the person was. You will have to give the anesthetic if he needs it. आपको सदाओ तो अपने काम में मस्त है, और जैसा मैंने अभी बोला, तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो किसी की और उसकी नज़र नहीं होती है, किस आदमी पे काम चल रहा है, वो सामने वाला आदमी कौन है, ये भी उसको पता नहीं रहता। और फिर सदाओ ने हाना को बोला आपको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर उसको ज़रूरत हुई तो। आई बट नेवर हैव आई, मैंने तो कभी किसी को एनेस्थेसिया नहीं दिया है। इट्स इज इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो टेक आउट कर रहे थे, जो पैकिंग था वो टेकिंग आउट कर रहे थे। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। ही पियर्ड इनटू द वुंड विथ ब्राइट सर्जन लाइट फासन ऑन द फोरहेड। उसके फोरहेड के ऊपर देखो, आप इसका पिक्चर भी है आपकी बुक में, देखिए उसके ऊपर एक लाइट है उसके फोरहेड पर, इसे सर्जन्स लाइट बोलते हैं। फासन ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट इज स्टिल देयर। The blood was coming out and still there was bullet, he said with cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. जो अगर ये वुंड बहुत डीप नहीं होगा तो मैं बुलेट निकाल सकूंगा। But the bleeding is not superficial.
bleeding है, it is not superficial, it means he has lost much blood. उसने बहुत ही blood गवाया है. At this moment हाना चॉक्ड. यही टाइम पे हाना चॉक्ड हो गई. He looked up and saw her face the color of sulfur. उसका तो कलर ऑफ सल्फर हो गया, इसका मतलब है उसका फेस पेल हो गया, येलो हो गया. Don't faint, he said sharply. Don't be unconscious. बेभान, अनकॉन्शियस मत हो जाना. He did not put down his exploring instrument. उसने देखा कि हाना was choking and she was losing her consciousness. Even at that time also he did not put down his exploring instrument. He just ordered Hana not to faint. Don't faint इसका indirect. याद है हमने प्रैक्टिस की थी 11th में. Don't का क्या कर देंगे? Not to. He ordered Hana not to faint. If I stop now, the man will surely die. अगर मैं तुम्हें संभालने के लिए आऊँगा तो the man would surely die. Will का indirect करते हैं तो would हो जाएगा. She clapped her hands to her mouth and leapt up and ran out of the room. Outside in the garden he heard retching, but he went on with his work. Retching यानी कि जब at the time of vomiting sensation जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? Retching. She put her hands on the mouth and she just rushed out of the room and from the garden. Dr. Sadao could hear the noise of retching, but he didn't want to help his wife and he continued his work. It will be better for her to empty her stomach. अगर उसको vomit हो जाए तो अच्छा है, उसका stomach empty हो जाएगा. He thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation. लेकिन अब हाना भूल गया था कि मेरी वाइफ ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है. But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. उसके वुंड के ऊपर नाइफ है. देखो यहाँ पे ये पिक्चर है, हाथ में नाइफ है और हाना इज अबाउट टू वॉमिट. You can see her face also, and knife was there in the hands of Dr. Sadao, and now Sadao was becoming angry with this man. Why? Because he was unable, because of his inability to go and help his wife. That's why he had become very impatient and irritable with this man who lay like a dead under his life. उसके नाइफ के नीचे डेड के तरह कोई डेड मैन है, इसी तरह वो पड़ा था. वो देखकर उसको गुस्सा आ गया. This man, there is no reason under heaven why he should live. ये आदमी को क्यों जिंदा रहना चाहिए? There is no reason. Sorry. Unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeded swiftly. But he continued his work swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeded swiftly. In his dream, the man was unconscious, and he just mourned, but Sadao paid no heed. To pay no heed, it means he didn't pay any attention, except to mutter at him. Groan, he muttered. Groan if you like. You can groan. I am not doing this for my own pleasure. मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. आपको मैं पेन दे रहा हूँ, आप पीड़ा से चीख रहे हो, लेकिन वो मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट. और मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन. फिर से घर में रूम में कौन आ गया? हाना वॉज अगेन देयर इन द रूम. Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back. This fellow is beginning to stir. ये स्टर हो रहा है, मिक्स स्टेज में है, कभी कॉन्शियस हो रहा है, कभी अनकॉन्शियस हो रहा है, इसलिए हमें एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ेगी. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? मैं
कैसे करूँ इसे? Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. You will have to just saturate the cotton. उसको जो एनेस्थेसिया की जो मेडिसिन है उससे सेचुरेट कर देना है, भिगो देना है और फिर उसको नॉस्ट्रिल्स के आगे रख देना है. Sadao replied without delaying for a moment the इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क. उसका जो डिटेल्ड वर्क का चल रहा था उसमें बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस आने बगैर सदाओ ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि आप ये कॉटन को सॉक कर दो और इस आदमी के नॉस्ट्रिल्स के सामने रख दो. व्हेन ही ब्रीदिंग बैडली मूव इट अवे अ लिटिल. जब वो उसका ब्रीदिंग बैडली हो जाए तो उसके नॉस्ट्रिल से थोड़ा सा हटा लेना. शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. It was piteously thin face. How was the face of that man? Piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether The man was suffering whether he knew it or not. उस आदमी को पता होगा या नहीं होगा. Watching him, she wondered if the stories knew it or not. उसको पता चलेगा या नहीं, ये she was not sure of it. Watching him, she wondered, ये थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है. Watching him, she wondered if the stories they heard something of the suffering of prisons were true. They came like flickers of humor told by a word of mouth. While giving the anesthesia, she was thinking of all these things. They came like flickers of humor told by word of mouth and always contradicted. लेकिन all these stories are contradicted. In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese army went to, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle of Manchuria. लेकिन वो एक जनरल के बारे में भी जानती थी जो अपनी वाइफ को बुरी तरह से मारता था, लेकिन कोई उसका अब मेंशन नहीं कर रहा था क्योंकि उसने बैटल ऑफ मंचूरिया अच्छे से जीत लिया था. इफ अ मैन लाइक दैट could be so cruel to a woman in this power, would he not be cruel to one like this, for instance? If a man like that could be so cruel to woman, जो एक इतना अच्छा पावर वाला आदमी, जनरल ताकीमा जैसा आदमी, वो अपनी वाइफ के ऊपर इतना क्रूअल होता है, तो फिर ऐसे आदमी के ऊपर कितना क्रूअल रहा होगा. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. लेकिन अब उसको उसको होप हुई कि ये बेचारे आदमी का टॉर्चर नहीं हुआ हो. It was at this moment that she observed deep red scar on his neck, just under the ear. लेकिन उसने फिर से एक स्कार नोटिस किया under the ear of that wounded man. Those scar, she murmured, lifting her eyes to Sadao. But he did not answer. But उसने कोई आंसर नहीं दिया. At this moment he felt the tip of the instrument strike against something hard. क्यों आंसर नहीं दिया? क्योंकि उसने कुछ फील किया उसके बॉडी के अंदर और उसका इंस्ट्रूमेंट कोई हार्ड चीज के साथ स्ट्राइक कर दिया गया. नियर द किडनी के पास कोई डेंजरस वो स्ट्राइक कर दिया था. All thought left him. He felt only the purest pleasure. उसको only pleasure हो रहा था. He probed with his finger. तो उसके बॉडी के अंदर उसने probing की, ढूंढ निकाली. Delicately familiar with every atom of his human body. ऐसा लग रहा था कि सदाओ ह्यूमन बॉडी के every atom से familiar था. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. और उसके जो प्रोफेसर थे उसने सदाओ की ये स्किल थी, ये नॉलेज थी, उसको पता था.
इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स, कितना अच्छा सेंटेंस है। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना नहीं, उसके बारे में अज्ञानता इज अ कार्डिनल सिन फॉर अ सर्जन। कोई भी सर्जन के लिए ये एक सीन है, पाप है। He had thundered at his classes year after year to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder। कितना अच्छा लेसन टीचर ने सदाओं को सिखाया था कि बॉडी का इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि जैसे आपने ही इस बॉडी को बताया है, इतना नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑपरेशन मर्डर के अलावा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मर्डर। थैंक गॉड दैट इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, सदाओ murmured। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in operation। कभी कभी at the time of operation सदाओ forgot himself, इतना अंदर एंग्रोस्ड हो जाते थे तो वो अपने आप को भूल जाते थे, तब वो पेशेंट के साथ मरमर करते थे माय फ्रेंड। और पेशेंट को हर टाइम एवरी टाइम वो कौन से वर्ड्स से ग्रीट कर रहे थे, माय फ्रेंड। He always called his patient and so now he did, forgetting that this was his enemy। और इसकी हैबिट थी माय फ्रेंड की तरह एड्रेस करने की, लेकिन एट दिस टाइम he forgot that he was no one but his enemy। Then quickly with the cleanest and the most precise of incisions the bullet was out। incisions वो थोड़ा सा कट लगाते ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसिजन बोलते हैं। तो क्लीन एंड प्रिसाइज इंसिजन में से द बुलेट वॉज आउट, बुलेट आउट हो गई। द मैन क्वीवर्ड, थोड़ा सा क्वीवर हो गया। क्वीवर करना इट मीन्स थोड़ा सा शिवर करना, ध्रुजना। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, बट फिर भी वो अनकॉन्शियस था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, दो ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। गट्स he muttered, choking, they got my guts। Guts, he muttered, choking, they got my guts। Sadao, Hannah cried sharply। Whoosh! The man sank against into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it। Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough। लेकिन हाना ने देखा कि ही हैड लॉस्ट वंस अगेन हिज कॉन्शियसनेस, सो उसने उसको कॉन्शियस सदाओ को बोला कि देखो। तो सदाओ ने अपनी उस आदमी की रिस्ट हाथ में ली और उसकी नर्व्स फील की, तो पल्सेस वेर देयर बट दे वर सो फेंट एंड फीबल पल्सेस वेर देयर। But enough, he wanted the man to live, to give hope। Okay, the man would not die and he would live, but certainly I do not want this man to live, he thought। But मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये आदमी जिंदा रहे। No more anesthetic, he told Hannah। अब ज़्यादा anesthetic मत देना। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it he filled the hypodermic and thrust it into the patient's left arm। थोड़ी मेडिसिन उसने बोतल में से, वायल में से निकाली और उसको एक लेफ्ट आर्म में इंजेक्ट कर दी। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। पहले तो वो मर जाए तो अच्छा है, मैं उसे जिंदा तो नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन बाद में क्या किया, एक बोतल ली और उसको इंजेक्ट भी कर दिया। फिर उसने पल्सेस चेक की। द पल्स अंडर हिज फिगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, then grew stronger। लेकिन because of the effect of that injection the pulses grew stronger। This man will live in spite of all। ये आदमी अब नहीं मरेगा, ये जिंदा रहेगा। He said to Hannah and sighed। क्यों उसको sigh क्यों किया? Because he knew that he was his enemy, he should not live। Moreover he also knew that
He is my patient and it's my duty to keep him alive. So, because of the efforts of Sadao, he told Hannah that this man will not die. The young man walked so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was. जब उसे पता चला कि वो कहाँ है तो वो डर गया. हाना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोजाइज. हाना को लगा कि हमें एपोलोजाइज करना चाहिए. शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम. उसने अपने आप से शी हरसेल्फ सर्व्ड द मैन. व्हाई? बिकॉज नो सर्वेंट वॉज रेडी टू एंटर द रूम. व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सो हिम summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she began him softly. How come you speak English? आप तो जापान में रहती हो, आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हो? I was a long time in America. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from his porcelain spoon. उसके you know that Japanese use porcelain spoons and vessels. So with the help of her porcelain spoon she tried to feed the wounded man. He ate but unwillingly, but still he ate. उसकी इच्छा तो नहीं हुई थी लेकिन उसने खाना खाया. Now you will soon be strong, she said, not liking him yet moved to comfort him. उसको अच्छा नहीं लगता था फिर भी उसने उसको comfort किया. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. और ये the man who was wounded, who was unconscious, उसका ऑपरेशन करके बुलेट निकाली और थोड़े दिन के बाद सदाओ ने जब देखा तो ये the man, it means थोड़े दिन, it means on the very third day, he saw that the man was sitting up and his face ब्लडलेस, थोड़ा पेल फेस था. तो इसके साथ ही हम ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे. अगर मैं प्रिपेयर कर लूँ तो उसके पहले भी आपको लेक्चर में भेजूंगी क्योंकि जल्दी से हम ये लेसन कंप्लीट करना चाहते हैं. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लेसन फ्रेंड. यू माइट सी इन योर विस्टा बुक्स दैट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लेसन एंड आई एम हेल्पलेस. सो टॉलरेट मी. Thank you very much. I miss you all friends. Goodbye.